Hello, determinants. We were given the target task to find the minors cofactors, and it was also asked, it was given the target to all of you, minors, then cofactors. Minors has the notation MIJ, M11, M12, M13. Cofactors has the notations CIJ or AIJ. At the end, we change the notation to capital AIJ. A11, A12, A13, C11, and so on. After finding the minors, we were having the target. First, minors, then cofactors of the determinant, each element of the determinant. The elements are denoted by the small letter Aij. Matlab A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, to A33. After that, we were asked to find the value of A11, means the first row, element in the first row, it's a cofactor, their product A11 into caps cofactor along first row A12, capital A12 plus A13, and the value got determinant, the value of the corresponding determinant. It was our target. Similarly, you were asked to find the values along the second row, second column, and third row and third column, first row, first column. So, if we consider any determinant, if we take the values of their minors as well as the cofactors, how we use these values for further calculations? What is the use of these values? If we take the value first row, now second row, A21, cap A21, A22, second row, A22, capital A22, and the last number is small A23, capital A23. The value comes to be what? Determinant, value of determinant. It was again according to the second row. अब अगर third row देते हो तो A31, capital A31, A32, capital A32, A33, capital A33, you will get the value of the determinant. Now it was according first row, second row, third row. Now when it was our last previous point. When we consider the first column, A11, capital A11, what will be the next element of first column? When you are in the first column, you are in the first row, second row and third row. First column में first row में भी होते हो, second row में भी होते हो और third row में भी होते हो. ये first row में, second row में और third row में, first column में A11. फिर यहाँ का नंबर है A21, capital A21. यहाँ का नंबर है A31, third row में A31. ये इसकी सभी की सम जो है, again it is the value of the determinant. Again it is the value of determinant. The numbers in the corresponding column and the cofactors of these elements, their addition will give you the value of determinant. Again, if you are considering the third or second column, one by one, second column is there. What is the first element of second column? A12. First row में, second row में और third row में element होते हैं. What is the second element of the second column? A22, second row में. What is this? A32. The second suffix common रहेगा column में. Column में second suffix same रहता है, row में first suffix same रहता है. Now multiplied by A12 plus A22. उसी के cofactors A32. The value is same as value of determinant. The value determinant के value के बराबर होती है. The value is same as the value of determinant. अब हम जब आगे जाओगे, when we go towards the next point, हम जब तीसरा कॉलम ले लेंगे A31, तीसरा कॉलम A13, A23 और A33. देखो कॉलम के लिए सेकंड सफिक्स विल शो द कॉलम. तो सेकंड सफिक्स आपको तीसरा कंसिडर करना, तो तीसरा कॉलम मिलेगा, पहले बदलते जाना है. अब उनके कोफैक्टर्स A13, A23,
A33 इनको ऐड करना है, आपको वैल्यू मिलेगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। दिस वर द पॉइंट्स। बट अगर हमने थोड़ा सा अलग किया, पहले रो के कोफैक्टर्स लिए के भी कोफैक्टर और तीसरे रो के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के सभी कोफैक्टर्स किए, लेकिन हमने अगर कंसिडर किया पहला रो A11, बट उसी रो A11, A12, A13 ये पहले रो के एलिमेंट है, को जो है ना हमने पहले रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, सेकंड रो या थर्ड रो के कोल फैक्टर ने मल्टीप्लाई किया। समझो सेकंड रो के को फैक्टर है A21, A22, A23, अगर आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगा, ये हमने आपको बताया था, आपको ये दिया था, कुछ लोगों ने किया A11। फिर सेकंड A11 पहला ही रो है, A12, A13, अब हमने सेकंड रो के लिए थे, अभी थर्ड रो के लिए A31, A32, A33, ये सबको ऐड करो, वैल्यू आएगा आपका 0, वैल्यू कम्स टू बी 0। पहले रो के साथ दूसरा और तीसरा रो के ऐसे 2 बार 0 आ सकता है, फिर सेकंड रो के साथ पहला और तीसरा रो ऐसे 2 बार 0, फिर थर्ड रो के साथ फर्स्ट एंड सेकंड रो के कोफैक्टर्स, तो ये सभी एडिशन 0 आएंगे। ऐसे रो वाइज 6, फिर से कॉलम वाइज 6, 12 times the value comes to be 0 by using the multiplication of elements and one row with the cofactors of the another row, and multiplication of elements in one column with the cofactors of other column, the value comes to be 0. In 9 ways we can find the value of the determinant: first row, second row, first column, second columns, third column. These are the ways of finding the value of the determinant, again using the any one of the row and any one of the column by using the cofactors you can find. Means 6 ways are there. Again, these were the important points given on our previous lectures about the values of minors and cofactors of the determinant. Yes. See, a very simple thing is there. This thing है determinant के लिए. So what is determinant? Determinant नंबर का अरेंजमेंट है, और इस नंबर के अरेंजमेंट में हम बहुत सारे चेंजेस करके वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. अब हमारे पास समझो कुछ डिटर्मिनेंट के वैल्यूज है. ओके, मेरे पास एक वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए. ये वैल्यू बीच में एक शॉर्टकट बताते, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा. सी प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी. ये इसकी जो वैल्यू रहती है ना, ये कभी भी याद रखो, ये ए बी सी के मल्टीपल्स में रहती है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी ए बी इसके मल्टीपल्स में रहती है. सम this is equals to some lambda times, or this is equals to some p times, there will be the sum number p times of a b c a. अगर इस तरह से a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी है पहले रो में, दूसरे रो में, तीसरे रो में ए बी सी 3 नंबर है. ए अगर ऐसे नंबर है, द वैल्यू विल बी इन दिस वे, इसकी वैल्यू इस तरह से होती है, p टाइम्स ऑफ ए बी सी ए बी इस तरह होती है. और ये वैल्यू आप डिपेंड है कि आपको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, उसके ऊपर है. ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी. ओके, याद रखो कि इस तरह के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके किसी एक नंबर से ये वैल्यू इक्वेट होती है. कौन सा है ये तो हम किसी एक लेक्चर में बताएंगे. बीच में आपको इस तरह की चीज डिटेल्स नहीं. सो आपको डिटर्मिनेंट के को मालूम है, मालूम है, माइक्रो फैक्टर्स का एप्लीकेशन
ये सब चीजें होने के डिटर्मिनेंट अगर कंसिडर करें और उसके अगर हमें माइनर को फैक्टर फाइंड करना है तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ये भी वैल्यू हमारे सामने आती है. Again, there are so many things with related with the determinant, but these things are depending on other chapters, your other knowledge. आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए, आपको डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए, आपको और कुछ चैप्टर्स का नॉलेज चाहिए, जो ये डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट वहां आप यूज कर सकते हो. When you have to use this, as far as consideration of the determinants, these are the basic things. What are the basic things? The first six properties of the determinant. First, determinant क्या है? ये पहली चीज. डिटर्मिनेंट एक नंबर का अरेंजमेंट है, उसमें कुछ बातें हमने बताए, कुछ रह गई. दूसरा है कि 1/1 का डिटर्मिनेंट होगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा, तो कैसे? तो उसके को फैक्टर माइनर, तो आपको ऐसे फॉलो करना है. 2/2 के को फैक्टर माइनर्स में सिंपल चीज है, वेरी सिंपल चीज इज देयर. डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज P1, P2, P3, 4, all and so on. Three बात. What is our third point? पर डिटर्मिनेंट हमने देखा, वैल्यू एड डेस्टिनेशन ऑर्डर वगैरह सब कुछ देखा. व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर, ये सब. फिर उस इम्पोर्टेंट थिंग देखा, प्रॉपर्टीज, ऑल द 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट. उसमें से जो लास्ट वाली है आर आई प्लस जे के आर जे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट. अब हमने ये जो प्रॉपर्टी अलग अलग देखी, प्रॉपर्टीज के बाद क्या देखा हमने? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वेयर वी अप्लाई द डिटर्मिनेंट. यस, एप्लीकेशन. और चौथा पॉइंट हमने देखा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वी सी? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स रिलेटेड चीजें हम चाहिए. वी मस्ट हैव सम कीज, दिस चार्ट. अभी अंडर ई पॉइंट देयर आर सो मेनी सब पॉइंट्स. पॉइंट के बहुत सारे सब पॉइंट होंगे, आपको उसके ऊपर सोचना है. So this is a, means you are familiar with so many determinant, and some things are determinant के ये एप्लीकेशन ये है कि अगर किसी रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, चलो हम आपको एक बता देते हैं कि फिर से इस हर एक पॉइंट के प्रॉपर्टी के साथ हम कुछ चीजें बता देंगे. समझो मेरे पास एक वैल्यू है डिटरमिनेंट 1 2 -5, ये मेरा डिटरमिनेंट है. फिर मैंने इधर लिख दिया 2 2 3 7, और मैंने इधर लिख दिया 1 0 0, और मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है. जब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटर हम क्या करते हैं, पहला रो, फिर दूसरा रो, तीसरा रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तीसरा, किसी भी वे से डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हो. बट आपको क्या याद रखना है, कौन से रो में या कौन से कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, याद रखो. नंबर ऑफ जीरोज इसमें, तो हम थर्ड रो से कैलकुलेशन करें. वी विल गो, नंबर ऑफ जीरोज 2 है, एक भी होगा तो बाकी लोगों के बाकी कंपैरिजन विद अदर रो एंड अदर कॉलम, यू हैव टू कंसीडर दिस. तो इसमें आपको क्या करना है, ये प्लस साइन होगा, ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा. प्लस माइनस प्लस. हाँ, ये प्लस माइनस प्लस होने के बाद आपको क्या करना है, ये प्लस माइनस, आपको थर्ड रो से डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है. थर्ड रो का पहला एलिमेंट कौन है, 1. अब ये थर्ड रो का पहला एलिमेंट है 1. 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो. 1 1 इंटू, इसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, उसका रो छोड़ दीजिए और उसका कॉलम छोड़ दीजिए. छोड़ दिया तो क्या बचा, 2 - 5 3 7. This is your remaining determinant. We are solving it by first row, third row. Usually we take first row. हम वो फर्स्ट रो से भी कैलकुलेट करके देखेंगे. ये थर्ड रो है, 1 0 0, 1 लिया. 1 लेने के बाद आपको उसका रो और कॉलम छोड़ना है. 7 2 आर 14 और 5 3 आर 15, तो हमारे पास रहेगा 14 माइनस माइनस प्लस 15, है ना. अभी सेकंड रो, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो, अभी थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट है जीरो. कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन की, जीरो ने मल्टीप्लाई किया तो सब जीरो होगा. थर्ड एलिमेंट भी जीरो है तो प्लस जीरो, माइनस जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएंगे. सिर्फ आपको एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 4 + 5 9, 2 + 9 दैट इज 29.
This is a way of finding the value of determinant if one row contains more zeros. अब हम पहले रो से कैलकुलेट करके दिखाएंगे और दूसरे रो से के वैल्यू 29 आती है। सो पहले रो से और दूसरे रो से भी, जरूरी नहीं कि आपको किसी एक ही रो से कैलकुलेट करना। इट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंट एंड द वैल्यूज इन द गिवन डिटरमिनेंट। आपका कन्वीनियंट क्या है? हम पहले रो से जाएंगे, प्लस माइनस प्लस से, तो +1 इंटू उसकी रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, 3 इंटू 0 7 इंटू 0 0। ओके, अब दूसरा पहले रो का दूसरा वैल्यू -2 इंटू उसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 2 इंटू 0 0 -7 अब तीसरा एलिमेंट -5 इंटू उसका रो छोड़ दो, उसका कॉलम छोड़ दो, 0 -3। So it will be what? 1 into 0 0 -2 -2 +14 -5 -3 +15, you will get 29। अब इससे लगने वाला टाइमिंग और इससे लगने वाला टाइमिंग में बहुत सारा अंतर है। इसमें आपको एक ही कैलकुलेशन करना है और इसमें आपको 3 कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू कैलकुलेट 3 वैल्यूज और फिर उसको ऐड करके, और उसमें एक भी थोड़ी भी गलती हो गई तो ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये कर लो ना, एक ही कैलकुलेशन, बट कीप इन माइंड यू मस्ट नो द साइन कन्वेंशन। पहला है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, कॉलम वाइज प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। हम और एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसी डिटर्मिनेंट को हम कंसिडर करते हैं। इसका वैल्यू 29 है, यही वैल्यू हम, यही डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं रहती आगे जाने की। ये 1 2 और -5 2 3 7 1 0 0। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू भी 29 है। क्यों? ये पहली प्रॉपर्टी है ना, इंटरचेंज ऑफ रोज विद कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट बी चेंज्ड। रो और कॉलम के इंटरचेंज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं। ये 29 ये डिटरमिनेंट है। अभी ये डिटरमिनेंट में हम रो वाइज नहीं जाएंगे, कॉलम वाइज जाएंगे और थर्ड कॉलम में जाएंगे। विल गो इन द थर्ड कॉलम। सिंपल है, द सेम डिटरमिनेंट। अभी ये डिटरमिनेंट बन गया 1 2 1 2 3 0। ओके, -5 7 0। जब हम इसके वैल्यूज फाइंड करते हैं, व्हेन वी फाउंड वैल्यू, पहले भी हमने जब वैल्यू फाइंड की तो ये वैल्यू हमारी कुछ 29 आई थी। चेक करेंगे। ओके, कुछ अगर गलती हुई तो नंबर हमने बदल दिए, समझो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जानना कहाँ से है? आपको जाना है पहले रो से, दूसरे रो से, तीसरे रो से, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। बट बेटर टू कंसिडर द थर्ड कॉलम, क्योंकि थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है। यस, थर्ड कॉलम का साइन कन्वेंशन क्या है? बहुत सिंपल है। थर्ड कॉलम का पहला क्या है? प्लस माइनस प्लस, पहला। दूसरा क्या है? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। और तीसरे का है प्लस माइनस प्लस। पहले और तीसरे का साइन कन्वेंशन सेम है, प्लस माइनस सब जगह प्लस। पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा। अभी प्लस +1 इंटू, आपको क्या, अब इधर से जा रहे हैं ना, आपको सोचना कुछ नहीं, उसका रो और उसका कॉलम उड़ा दीजिए। ये 1 का कॉलम और 1 का रो गया, तो 2 7 आर 14 और माइनस माइनस +15, 14 +15। बाद में ये नंबर आएगा -0 और +0, कुछ भी नहीं करना है। सो वैल्यू इज 29। वी आर राइट अगेन। So you have this value 29. This is a way application of the properties of determinant. When we use this property, हमको ये properties कहाँ use करना है, ये भी बहुत important बात है हमारे लिए। This is also very important thing for you. So you are familiar with all these properties, but आपको उसके application करने के लिए कुछ problems को लेकर जाना पड़ता है। You have to consider some problem, and on these problems you will apply some प्रॉपर्टीज। आपको जब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करने होते, तो पहले सभी प्रॉपर्टीज आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए, फर्स्ट से लेकर 7th प्रॉपर्टीज तक। एज वेल एज अभी हम जो जाएंगे आगे का पार्ट हमारा होगा, दिस इज कॉल्ड द लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना। लर्निंग एक्सपीरियंस, ये है लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको लर्न करना पड़ता है, लर्निंग एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग एक्सपीरियंस। शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस। जिंदगी में आपको कुछ सीखकर उसका जो एक्सपीरियंस आता है, उसे कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके,
अब एक्सपीरियंस की बात करें हम, जो पायलट होता है उसका एक्सपीरियंस आवर से कैलकुलेट किया जाता है। हाउ मेनी आवर्स पायलट का एक्सपीरियंस, हाउ मेनी आवर्स, हमने कितने आवर्स प्लेन को चलाया है, प्लेन को उड़ाया है, वो आवर्स में काउंट किया जाता है लर्निंग एक्सपीरियंस में। लोग बोलते हैं ना मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं 25 साल में हाउ मेनी आवर्स, ठीक है नहीं, और उसमें आपने कैसे लैंडिंग किया, क्या किया, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो लर्निंग एक्सपीरियंस। अब आप बोलते हैं हमने बहुत सारे किताबें पढ़ी है, बट व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस, तो उसमें जो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस आते वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी लर्निंग एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग। अगेन कुछ पायलट ऐसे रहते बहुत सारी बार ट्रेनिंग करके उनको ना अच्छी तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस आए कि वो एक्सपर्ट बनते, बट कुछ खुद एक्सपर्ट रहते। दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। दे हैव experience so they are expert, but some are, means some persons are, they are actually expert। तो एक्चुअली एक्सपर्ट का जो आईक्यू रहता है वो अलग रहता है, और उनका जो स्ट्रांग सेंस रहता है, स्ट्रांग सेंस का हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेंस होता है। आपको हिंदी पढ़ना है, आपको समय पढ़ना है, उसके लिए अलग अलग सेंस है, हर भाषा हो। आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें होती है। और ये ऐसा भी एक व्यक्ति में ये सब होते हैं, बट वो कभी बाहर आते हैं कभी नहीं आते, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेंस है, मैथ्स में आपको मैथमेटिकल सेंस चाहिए, किसी चीज को मैथमेटिकली कैसे आपको मेजर करना है। सो हमारे सामने कुछ भी प्रॉब्लम, और स्टूडेंट में आजकल के जनरेशन में तो टेक्नोलॉजी है, तो उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करके, तो सिर्फ थेरोटिकल में उनको बोर लगता है, थेरोटिकल बातें। कोई बात नहीं, चलो हम आगे लेके जाएंगे एक प्रॉब्लम के साथ, और उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करने के बोल देंगे। सो मैंने शुरू में एक प्रॉब्लम लिखा था वन के साथ, नंबर 1 2 -1 एक प्रॉब्लम लिखा था, या मैंने कल जो प्रॉब्लम दिया था उसको कितने लोगों ने हमने जो बताया वो किया है, मेनी स्टूडेंट सॉल्व और कंप्लीटेड द, कोई नहीं, हाँ, यस गुड, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे, यस, यू आल्सो, यस, वेरी गुड, नाइस। सो हर चीज में प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू प्रैक्टिस, यस यस यस, यस, वेरी गुड, यस यस, 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 सो कल के प्रॉपर्टीज को सिर्फ हमने एक इक्वेशन बता के बताया कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है। डिटरमिनेंट के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जो इक्वेशन में हमने कुछ एप्लीकेशन देखे, इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल, थ्री इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। व्हेन देयर आर टू इक्वेशंस, आपको पता लगा होगा कि दो इक्वेशन हो गए तो उसका वैल्यू तो हम नहीं फाइंड कर सकते, फिर क्या फाइंड कर सकते हैं, व्हाट कैन वी फाउंड, व्हाट कैन वी फाइंड फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस, और थ्री वेरिएबल है, ये भी हमने आपको पूछा था, आपको बताना था कि दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो उस वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ वैल्यू हमें मिल सकते हैं या नहीं। देयर वर सो मेनी पॉइंट्स वी एक्सप्लेन्ड, और आपको लिख लेना है जो प्रेजेंट है, या कुछ लोग रिकॉर्डिंग लगा के बैठे, बट आपको लाइव लेक्चर कभी भी इम्पोर्टेंट होता है रिकॉर्डिंग से ज्यादा, बिकॉज लाइव में क्या हो जाता है, लाइव में आपको सामने वालों को सुनते हैं, वो कैसे भी हो, सुनते सुनते आपके माइंड में कुछ विचार आ जाते हैं, और वो थॉट प्रोसेस में आप, आपके लिए ऑप्शन भी है ना कुछ क्वेश्चन करने का, तो थॉट प्रोसेस में आप डायरेक्ट एक आधा क्वेश्चन भी कर सकते हो चैटिंग, और उसका कुछ जवाब सामने से आया तो आप सेटिस्फाइड हो सकते हो, नहीं आया तो अभी आप डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, बट कुछ ना कुछ हल उसका निकलता है, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। सो ये थी बहुत सारी बातें डिटरमिनेंट के बारे में,
अब हमारे सामने डिटर्मिनेंट के बहुत सारे कुछ चीजें होती है, बट डिटर्मिनेंट को और अगर आपको पढ़ना है तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको और कुछ चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जैसे डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर है, इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें आएगी। और मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का डिटर्मिनेंट में एप्लीकेशन होता है, बट डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन होता है मैट्रिसेस में। डिटर्मिनेंट इज अप्लाइड इन डिटर्मिनेंट, इट्स एप्लीकेबल इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस भी यही रहता है, नंबर की अरेंजमेंट रहती है, बट उसमें रो और कॉलम फिक्स नहीं रहते, बस इतना ही है। कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। हम ना मैट्राइज शुरू करने जा रहे हैं, हम तो सिर्फ डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो ये दीज वेर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द डिटर्मिनेंट, कि जो चीजें थी, प्रॉपर्टीज थी, समथिंग्स द कॉन्सेप्ट। तो ये डिटर्मिनेंट का नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं होगा, वो हम भटक जाएंगे फिर। मुझे ये बताना है कि डिटर्मिनेंट का और कुछ चैप्टर में एप्लीकेशन है। मोस्ट जो होता है वो मैट्राइसेस